Welcome back, students. So we were discussing our third chapter, that was reconstitution of partnership. है ना? Reconstitution of partnership. So in the previous modules, what I have explained? I have explained you about the goodwill and its methods. ठीक है? So again, let me summarize. Goodwill के दो meaning थे. First, at the time of sale of business, how much extra money you are going to charge from the purchaser of your business, that's called as goodwill. And second meaning था, जब भी profit ratio change होगा, तो profit ratio change होने पे any partner will gain, he will have more profit sharing in the future, and any partner will lose. ठीक है? So then the amount being paid by the gaining partner to the sacrificing partner, that will be called as goodwill. ये second meaning था. Now we have read about three method. पहला method होता है average profit method. Average profit method was divided into two types. First as simple average profit method, second was weightage average profit method. ठीक है? Now second was super profit method. Super profit क्या था? Super profit means extra profit over normal profit. ठीक है? फॉर्मूला था उसका सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. नाउ थर्ड व्हिच आई हैव एक्सप्लेन, कैपिटलाइजेशन मेथड. आई एम लेट मी अगेन गिव यू एग्जांपल कि कैसे कैपिटल को कंपेयर करके हम गुडविल निकालते थे. व्हाई आई एम गिविंग एग्जांपल? बिकॉज इन दिस मॉड्यूल these two questions are being solved on the basis of capitalization method only. That's why. ठीक है? See, example I have given in the previous module. Suppose A एक person है और B एक person है. A have invested 20 lakh rupees in his business and he have earned profit of rupees 2 lakh. 20 लाख लगा के कितना कमाया? 2 लाख रुपए, 2 lakh rupees. ठीक है? But B have employed 15 lakh rupees and he also earned a profit of 2 lakh rupees. तो इसने 20 लाख लगा के 2 लाख कमा लिया. ठीक है? नॉर्मली ऐसा होता है कि 20 लाख लगा के 10% प्रॉफिट होता है, मींस 2 लाख लोग कमाते हैं. लेकिन ये इसने 15 लाख लगा के ही 2 लाख कमा लिया, मींस कुछ ना कुछ तो इसकी क्वालिटी होगी बी की, तभी उसने कम कैपिटल लगा के क्या कमा लिया? उतना ही प्रॉफिट कमा लिया. सो नाउ द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल दैट वाज कॉल्ड एज गुडविल. तो मैंने कहा था 20 लाख कैपिटल इसने लगाई, प्रॉफिट तो सेम है, तो प्रॉफिट का डिफरेंस तो ले नहीं सकते. 20 लाख कैपिटल इसने लगाई, 20 लाख कैपिटल लगा के 2 लाख इसने कमाया, पर इसने कितनी लगाई? 15 लाख. तो 20 minus 15, that is called as goodwill. Thus, by comparing the capitals, we can calculate goodwill also. Super profit method में हमने प्रॉफिट को कंपेयर किया था, कैपिटलाइजेशन मेथड में हम कैपिटल को कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है? दिस वाज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ गुडविल. ठीक है? तो सी, दिस वाज formula of goodwill as per the capitalization of average profit, because I have told you in the previous module कि गुडविल की कैलकुलेशन में कैपिटलाइजेशन में भी दो मेथड है. एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. ठीक है? सो दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है? और इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व किया है. फर्स्ट इज बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सी ए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, दिस वन अप टिल हियर, and then capitalization of super profit, this one. ठीक है? Why I have solved? Because you can compare, you can understand it more comprehensively कि जब capitalization of average profit से पूछा होगा तो solution कैसे करना है, और फिर capitalization of super profit से पूछा होगा तो solution कैसे करना है. So that in order to make it clear, crystal clear, I have chosen such question that I have solved by both methods of capitalization of goodwill. Understood this? Now see, from the following figures, calculate the value of goodwill by A. Capitalization of average profit and B. Capitalization of super profit. Now, I have told you formulas before only in the previous module. Again, I am telling you formula. अभी बोला मैंने ना कि इसने कितने लगाए थे, B ने, A ने 20 लाख और इसने कितने लगाए थे? 15 लाख. तो हमने गुडविल कैसे निकाली थी? 20 लाख माइनस 15 लाख. ठीक है? मीन्स दोनों कैपिटल का डिफरेंस. सो हियर गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड. एक्चुअल इसने लगाई थी 15 एग्जांपल वाइज. ठीक है? नाउ अब इसमें ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या था कि इतना एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए. जैसे एग्जांपल 20 लाख लगा के उसने 2 लाख कमाई थी ना, तो 2 लाख का एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए, लाइक दिस. ठीक है? तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था?
एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उसके लिए कभी कभार हमें कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं दी होगी, ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। सो लेट मी full read this question, then I'll put the values and you'll understand how to solve it। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से करते हैं पहले। उसमें दिया था एक्चुअली एवरेज प्रॉफिट 72,000 रुपीज, एसेट्स दिए थे 9,70,000 रुपीज, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% और लायबिलिटीज दी थी 4 लाख रुपीज की। नाउ सी व्हाट्स आवर फॉर्मूला, आवर फॉर्मूला इज गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का तो फॉर्मूला है, ठीक है, क्या, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, बट एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज आल्सो नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। दैट्स व्हाई आई हैव चूजन दिस क्वेश्चन, कि आपको इस क्वेश्चन में ये भी पता चले कि इफ सम टाइम कैपिटल एम्प्लॉयड साफ साफ नहीं दी होगी तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, कितनी कैपिटल लगाई है। सी इन 11th क्लास यू हैव रिटन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता था, अकाउंटिंग इक्वेशन में टोटल ऑफ एसेट्स इक्वल्स टू टोटल ऑफ लायबिलिटी। इवन बैलेंस शीट आल्सो लाइक दिस, बैलेंस शीट में इधर आते हैं एसेट्स, इधर आती हैं क्या, लायबिलिटीज। और अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या था, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट, है ना, कैपिटल प्लस, आई एम राइटिंग हियर, यू कैन सी हियर, हियर आई एम राइटिंग कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट्स, ठीक है। तो अगर बाय चांस क्वेश्चन में हमें कैपिटल की वैल्यू ना दी हो तो व्हाट कैन वी डू, क्या कर सकते हैं हम ट्रांसपोज कर सकते हैं, कैपिटल में से कैपिटल यहां रख देंगे तो एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी, ट्रांसपोज कर देंगे तो यहां आ जाएगा कैपिटल रह जाएगा, कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक है। तो नाउ दिस फॉर्मूला, ठीक है, दिस फॉर्मूला विल बी मेड कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। ओके, सी हियर कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दी थी क्वेश्चन में, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस अकाउंटिंग इक्वेशन ओनली आई हैव मेड दिस फॉर्मूला। अंडरस्टूड दिस? नाउ आई एम रबिंग दिस, वेट। सो सी कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी, एंड एसेट लायबिलिटी की वैल्यू क्वेश्चन में दी थी, तो एसेट्स वर 9,70,000, लायबिलिटीज वर 4 लाख। 9,70,000 assets minus 4 lakh liability, that is 5,70,000. So if in the question capital employed is not given, then you can find out by this formula, ठीक है। अब हमें गुडविल के लिए क्या चाहिए, गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी मिल गई, 5,70,000, so I have put the value 5,70,000 here, ठीक है। Now what we want कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मींस उतना एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए नॉर्मली कितनी कैपिटल चाहिए पड़ती है, ठीक है। मींस इतना एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए 72,000 रुपीस कमाने के लिए नॉर्मली कितनी कैपिटल चाहिए पड़ती है। तो फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट गिवन 72,000 ये दिया था, इनटू 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो मींस 7,20,000। तो 72,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए, 72,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए पड़ती है, 7,20,000। 7,20,000 चाहिए पड़ती है, और उसने कितनी लगाई, उसने लगाई सिर्फ 5,70,000। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, सी 7,20,000 माइनस 5,70,000, दैट इज 1,50,000। दिस विल बी द गुडविल, क्योंकि उसने प्रैक्टिकली, क्योंकि उसने 5,70,000 रुपीज लगा के, ठीक है, उतना प्रॉफिट कमा लिया, मीन 72,000, जिसको कमाने के लिए नॉर्मली कितनी कैपिटल लगती है, 7,20,000, इसलिए 1,50,000 दोनों कैपिटल्स का जो डिफरेंस है, दैट इज हिज गुडविल। अंडरस्टूड दिस? दिस वाज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। नाउ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, अगेन आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस मॉड्यूल कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में हमने डिफरेंस लिया था दोनों कैपिटल का, उससे निकाली थी गुडविल। बट व्हेन वी विल सॉल्व बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो वी विल नॉट टेक डिफरेंस। व्हाई? बिकॉज सुपर प्रॉफिट तो ऑलरेडी डिफरेंस होता है, सुपर प्रॉफिट तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा होता है। Then the formula will shrink only at one step. क्या? See, goodwill equals to super profit into 100 upon normal rate of return. मतलब उतना सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी कैपिटल लगानी पड़ती, बिकॉज इफ ही इज अर्निंग मोर देन द नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, मींस ऑलरेडी उसकी गुडविल है, तो अब उतना सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए जितनी कैपिटल लगानी पड़ती है, उतनी कैपिटल जो बंदा अपना बिजनेस सेल कर रहा है वो परचेजर से ले लेगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला
goodwill equals to super profit into 100 upon normal rate of return, firstly we'll have to calculate super profit. तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला दिया है, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्चुअली एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है. अब कभी कभार ऐसा होता है कि नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया होता है. ठीक है. जैसे इन द क्वेश्चन यू सी एवरेज प्रॉफिट दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है, एसेट दिया है, लायबिलिटी दी है, बट नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया है. तो इफ वी विल नॉट हैव नॉर्मल प्रॉफिट, हाउ विल कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट? And if we will not calculate super profit, then how we will put the value here and how we will calculate the value of goodwill? That's why in order to find out super profit, firstly we need to find out what? Normal profit. तो normal profit कैसे निकलता है? Normal profit का फॉर्मूला है normal profit equals to capital employed into rate upon 100. ठीक है. Normal profit equals to capital employed into rate upon 100. Now इस क्वेश्चन में capital employed भी नहीं दी थी because asset दिया था, liability दी थी. So as we have find out capital employed in the above part, same we will find out at the downstairs. Value तो वही रहेगी ना, क्योंकि asset liability की value तो वही है. क्वेश्चन तो सेम ही चल रहा है. ठीक है. Now, so firstly we want for goodwill we want super profit. For super profit we want normal profit, and for normal profit we want capital employed. तो पहला स्टेप है, see I have put here number 1, कि हमें पहले निकालनी पड़ेगी क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड. तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी एज वी हैव डन हियर. ठीक है. तो एसेट्स की वैल्यू 9,70,000, लायबिलिटी की वैल्यू 4 लाख, सेम अमाउंट. ठीक है. 9,70,000 माइनस 4 लाख दैट इज 5,70,000. तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई. कैपिटल एम्प्लॉयड से अब सेकंड स्टेप पे क्या निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट. तो सी सेकंड स्टेप आई हैव रिटन. ठीक है. कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100. तो 5,70,000 आया था यहां से, 5,70,000 इनटू रेट 100, 10% अपॉन 100. तो कितना आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट? 57,000. नाउ ये सेकंड स्टेप हो गया. अब नॉर्मल प्रॉफिट क्यों निकालना था? बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट. तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. यहां से 57,000 आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट, और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना दिया था क्वेश्चन में? 72,000. तो 72 एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 57,000 दैट इज 15,000. ये क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट. एंड देन पुट द वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट इनटू द फॉर्मूला ऑफ गुडविल. Super profit into 100 upon rate of return, that is 15,000 into 100 upon rate of return, that is 1,50,000. Means 15,000 का सुपर प्रॉफिट कमाया उसने अपने बिजनेस में. उस 15,000 का सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी कैपिटल होनी चाहिए? 1,50,000. तो अब जब वो बिजनेस सेल कर रहा है तो वो सुपर प्रॉफिट परचेजर एंजॉय करेगा. तो इसलिए जो सेलर है वो 1,50,000 रुपीज अपनी गुडविल के उससे ले लेगा. So in this way, this one same question is being solved by the two methods. First was capitalization of average profit method, and second was the capitalization of super profit method. Understood? You go once again, revise this, rewind it, and then repeat it, है ना? Then solve it. You'll understand. Okay? The main work is to know the formula. कि कौन सा formula है? Formula में value put करनी है. बाकी it's very easy. Understood this? Now see. Now new topic in this module, new topic नहीं है वो, that was second topic, second meaning. I have told you second meaning of goodwill. Second meaning क्या बताया था? Second meaning बताया था when if any partner will gain by the change of ratio and any partner will lose, then the gaining partner will pay some amount to the sacrificing partner and that amount is called as goodwill. ठीक है. तो ये कब होगा? जब रेशियो चेंज होगा. रेशियो चेंज मतलब क्या? रिकंसिडरेशन. तो इसलिए आई हैव रिटन टॉपिक हेडिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. सी प्रॉफिट रेशियो तो बहुत वजह से चेंज हो सकता है. एडमिशन से हो सकता है, रिटायरमेंट से हो सकता है, डेथ से हो सकता है पार्टनर की. बट अभी इन दिस मॉड्यूल हम बात कर रहे हैं कि अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, मीन सपोज ए एंड बी आर देयर. ठीक है. पहले वो 50% शेयर करते थे, मींस 1:1. आगे से उन्होंने डिसाइड किया क्या कि हम 70% 30% शेयर करेंगे, मींस 7:3. तो ये रेशियो चेंज हुआ ना. तो जिसको पहले 50 मिलता था अब उसको 70 मिलेगा, मींस ही इज गेनिंग. और जिसको पहले 50 मिलता था अब उसको आगे से 30 मिलेगा, कम मिलेगा, तो मींस ही इज सैक्रिफाइसिंग. तो वो बी सैक्रिफाइस क्यों करेगा? वो क्यों चाहेगा कि आगे से मुझे कम प्रॉफिट में हिस्सा मिले? तो फॉर दैट ए मस्ट हैव टू पे टू बी and that is called as goodwill. तो अगर existing partners जो हैं वो अपने बीच में अगर रेशियो चेंज करते हैं, then how to calculate the goodwill and how to do the treatment of goodwill, how to calculate कि कितना अमाउंट A देगा B को.
ठीक है, बिकॉज ए गेनिंग कर रहा है तो ए पेमेंट करेगा बी को, तो कितना अमाउंट निकालेगा, वो अमाउंट निकालने के लिए वी आर डूइंग दिस मेथड, ठीक है। नाउ सी, एक सिंपल सी बात है, उसका आंसर ये है कितना अमाउंट देगा। अगर ए जो है 50-50% था, ए 50% बी 50%, अगेन फ्यूचर में वो डिसाइड कर रहे हैं 70 एंड 30, तो इसने कितना गेन किया 20%, इसने सेक्रीफाइस कितना किया 20%। तो सिमिलर है ना, ज्यादा गेन करेगा तो ज्यादा पेमेंट करेगा, कम गेन करेगा तो कम पेमेंट करेगा, मींस गेनिंग रेशियो, ठीक है, गेनिंग रेशियो। तो उसके लिए पहले गेन निकालना पड़ेगा, ये मेन बात है। सी हियर नाउ, तो फॉर इट वी हैव टू कैलकुलेट द सेक्रीफाइस ऑब्लिक गेन बाय द पार्टनर, कि किसी पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया है या कितना गेन किया है। फॉर दैट अ फॉर्मूला इज देयर, फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग सेक्रीफाइस या गेन, ओल्ड शेयर ऑफ पार्टनर माइनस न्यू शेयर ऑफ पार्टनर। अगर अमाउंट पॉजिटिव आता है, इफ पॉजिटिव मतलब उसने सेक्रीफाइस किया होगा, एंड इफ अमाउंट नेगेटिव आता है तो उसने गेन किया होगा, ठीक है। नाउ लेट मी प्रूव कि ये फॉर्मूला कैसे बना, ठीक है। सी, सपोज ए एंड बी आर पार्टनर्स, 50-50% शेयर करते थे, आई हैव टेकन परसेंट, ठीक है, वैसे रेशियो लेते हैं, रेशियो में 100% ही 1 होता है टोटल, है ना, तो बट फॉर द कन्वीनियंस आपके समझने के लिए आई हैव टेकन परसेंट। तो ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग 50%, इन फ्यूचर दे हैव डिसाइडेड टू शेयर 70-30। अब आप बताइए हु हैज गेन्ड हु हैज लॉस्ट। तो देखो इसको पहले कितना मिलता था, दिस इज ए को 50, आगे कितना मिलेगा 70, तो यू आर गेटिंग, है ना, कि इसने क्या किया है, गेन किया है। और इसको पहले कितना मिलता था 50, बट इन फ्यूचर ही विल गेट हाउ मच 30, तो पहले ज्यादा था ना, फिर कम हो गया। तो ये कैसे पता चला, ये तो आप चलो परसेंट है, बट रेशियो में 1/2, 2/3, 4/5 ऐसा होता है, तो उसमें कैसे निकालेंगे। तो सी, आई एम प्रूविंग दिस फॉर्मूला, हाउ दिस फॉर्मूला इज बीइंग मेड। सी, सेक्रीफाइस या गेन बाय ए निकालना है, तो फॉर्मूला क्या था, ओल्ड माइनस न्यू। अगर पॉजिटिव आएगा तो सेक्रीफाइस, तो करके देखते हैं। ए की बात करते हैं, ए का ओल्ड क्या था 50, न्यू क्या है 70, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है, तो क्या आया -20। अब -20 गेन है ना, कैसे समझ लो ना, पहले 50% था, अब आगे से 70 मिल रहा है, तो गेन ही कर रहा है ना, तो नेगेटिव आया तो गेन हुआ ना, ये तो लिखा था इफ नेगेटिव वैल्यू देन गेन, ठीक है। और बी का देखिए, बी का ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड क्या था बी का 50 और न्यू क्या है 30, तो ओल्ड माइनस न्यू 50 माइनस 30, तो क्या आया पॉजिटिव। तो पहले 50 था, अब कितना हो गया 30, तो वाला सेक्रीफाइस कर रहा है ना, कम मिल रहा है ना उसको, आगे से सेक्रीफाइस कर रहा है, तो देखो पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस तो बोला था, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सेक्रीफाइस और गेन बाय एनी पार्टनर। तो ये क्यों निकाला था, ये इसलिए निकाला था बिकॉज जिस प्रोपोर्शन में कोई बंदा सेक्रीफाइस करेगा या कोई बंदा गेन करेगा, तो वो उतना प्रोपोर्शन में पेमेंट करेगा। दैट्स व्हाई वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्टली कि हाउ मच एनीबॉडी हैव गेन्ड, हाउ मच एनीबॉडी हैव सैक्रिफाइस्ड, ठीक है। बट एक बात ध्यान रखना, टोटल सैक्रिफाइस मस्ट ऑलवेज कम इक्वल्स टू ऑफ गेन, क्योंकि एक जितना सैक्रिफाइस करेगा दूसरा उतना ही तो गेन करेगा ना, ज्यादा कैसे हो जाएगा ना, कम होगा। तो इफ ही हैज सैक्रिफाइस 20%, ही मस्ट हैव गेन 20% ओनली, ठीक है। टोटल सैक्रिफाइस मस्ट बी इक्वल्स टू टोटल गेन, अंडरस्टूड दिस नाउ। तो नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस मेथड ओनली, ठीक है। हम देखते हैं कि कितना पेमेंट करेगा। सी, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2, तो प्रॉफिट को शेयर करते हैं 3:2 में। 3:2 मींस व्हाट, 3/5 एंड 2/5, ओके। नाउ with effect from 1st April 2016 means next financial year से they agreed to share the profits equally share करने का सोचा उन्होंने। First the ratio was 3:2 and now in the future they are deciding कि we will share in 1:1, that is half and half, 50% 50%. For this purpose goodwill of the firm was valued at 30,000। फर्म की गुडविल है, फर्म की टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है। हमें टोटल गुडविल से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि ए और बी में से जो भी गेन कर रहा होगा, ठीक है, ही विल मेक पेमेंट टू हुम, टू द अदर पार्टनर हु विल सैक्रिफाइस। तो वो पेमेंट का अमाउंट क्या होगा वो निकालना है। ये तो दी है फर्म की गुडविल, हमें निकालना है कि उसकी गुडविल कितनी होगी। जिस प्रोपोर्शन में वो सैक्रिफाइस करेगा उस प्रोपोर्शन में उसे गुडविल मिलेगी, या जो गेन करेगा वो उस प्रोपोर्शन में गुडविल पे करेगा। तो इससे निकालेंगे 30,000 फर्म की गुडविल है, एंड वी वांट टू कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट गेनिंग पार्टनर विल पे टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले उसके लिए पहले निकालना पड़ेगा, एज वी हैव फाइंड आउट हियर ना, उसके लिए निकालना पड़ेगा कि किसने कितना गेन किया। तो फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू,
पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव आया तो गेन। तो सी ओल्ड रेशियो इसका क्या है 3/5, इसका क्या है 2/5। न्यू क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 हाफ हो गया ना 1:1, ठीक है। सी तो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस ऑब्लिक गेन बाय ए एंड बी। लेट्स सी कि किसने सेक्रीफाइस किया और किसने गेन किया। तो फॉर्मूला ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, पॉजिटिव आया सेक्रीफाइस, नेगेटिव आया गेन। नाउ पुटिंग वैल्यूज इन इट, सी ए का ओल्ड क्या था बोलो ना 3/5 इसका और 2/5 इसका। ए का ओल्ड 3/5 इसका, बी का 2/5, ठीक है। न्यू का न्यू रेशियो क्या है 1:1 मींस हाफ हाफ, तो बोथ का न्यू शेयर हाफ हाफ, ठीक है। नाउ टेक एलसीएम, 5 और 2 का एलसीएम कितना आया 10, ठीक है। ओल्ड माइनस न्यू 10 आ गया। नाउ एलसीएम लेके सॉल्व किया तो वैल्यू आई क्या 1/10, 1/10 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आया तो क्या है सेक्रीफाइस, तो यहां मैंने लिखा है सेक्रीफाइस बाय ए, ठीक है। तो ए हैज सेक्रीफाइस 1/10 ऑफ हिज शेयर। नाउ बी, टू पार्टनर्स हैं तो मैंने बोला ना टोटल सेक्रीफाइस विल बी इक्वल टू टोटल गेन। तो अगर ए 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है तो पक्का बी 1/10 गेन कर रहा होगा, ठीक है। तो सी ओल्ड माइनस न्यू, एलसीएम निकाला 10, देन सॉल्विंग इट माइनस 1/10 आया, और माइनस मींस व्हाट गेन। तो A is sacrificing 1/10 share, B is sacrificing gaining 1/10 share, ठीक है। नाउ मेन करना क्या था, करना है गुडविल का अमाउंट। तो गुडविल का अमाउंट कैसे निकलेगा, मतलब कितना पेमेंट करेगा। नाउ हु विल मेक पेमेंट टू whom, सिंस B is gaining, B will have more profit in future, तो he will pay to A। अब मेन बात यह है कि कितना अमाउंट पे करेगा। तो आई हैव टोल्ड यू जिस प्रपोर्शन में जिस रेशियो में उसने गेन किया है उस रेशियो में वो पेमेंट करेगा। तो फॉर दैट द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 30,000, तो 30,000 में उसके गेन का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो सी आई हैव रिटन अमाउंट ऑफ गुडविल टू बी पेड, हु विल पे, बी विल पे, टू हुम, ए। कैसे निकालेंगे, फर्म्स गुडविल इनटू सैक्रिफाइसिंग शेयर। सैक्रिफाइसिंग शेयर क्या था 1/10, फर्म गुडविल क्या थी 30, तो 30,000 इनटू 1/10 दैट इज 3,000। नाउ दिस इज द अमाउंट, ये निकालना था हमें कि आई जो गेन कर रहा है मींस बी इज गेनिंग, so B will pay how much 3,000 rupees out of his capital account to whom, A। कैश नहीं लाएगा, क्यों, B की कैपिटल है ना, A and B both are partners, ठीक है। तो B will pay out of his capital, we will deduct the capital of B and we will increase the capital of A। now कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी कम इन द क्रेडिट साइड बिकॉज क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हम B की कैपिटल घटा रहे हैं, बी की कैपिटल घटा देंगे तो क्या हो जाएगी डेबिट, सी एंट्री जनरल एंट्री, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000, अमाउंट निकला 3,000 टू ए इज कैपिटल अकाउंट, बिकॉज ए को मिल रहा है तो ए की कैपिटल बढ़ जाएगी मींस क्रेडिट, एंड बी दे रहा है तो बी की कैपिटल घट जाएगी। बी विल नॉट पे कैश, रिमेंबर दिस, ठीक है, बिकॉज दे बोथ आर पार्टनर्स, सो दे विल take out their capital, B will take out the capital from his capital account and then transfer it to the sacrificing partner, that is A's capital account। so this entry is there। तो इसकी एंट्री का लॉजिक लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो आई एम राइटिंग हियर, यू सी एंट्री का लॉजिक हो जाएगा क्या, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, and this entry will be used in admission chapter also, in retirement chapter also, in death chapter also, whenever goodwill will be paid except in cash। अगर कैश में बोला तो बात अलग है, ठीक है, except in cash, कैश को छोड़ के जब जब goodwill पे होगी anybody will gain and anybody will sacrifice। तो जो गेन करेगा we will deduct from his capital means we will debit his capital, gaining partner capital account debit, और जो गेन करेगा जो सेक्रीफाइस करेगा शेयर सेक्रीफाइस करेगा उसको पेमेंट मिलेगा तो उसकी कैपिटल में बढ़ा देंगे मतलब क्रेडिट, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सो लॉजिक क्लियर, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, यहां गेन कौन कर रहा था, यहां गेन कर रहा था बी, तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। अंडरस्टूड दिस? सो दिस वाज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन पार्टनर्स आर चेंजिंग देयर रेशियो, ठीक है। सो नाउ दिस नेट एंट्री क्लियर, okay। in the next module I will teach you about the treatment of reserves। अगर बाय चांस क्वेश्चन में रिजर्व दिया हो और आगे से रेशियो चेंज हो रहा हो तो क्या करना है, यहां पे गुडविल दी थी, दिस वाज द एंट्री ऑफ गुडविल, दिस इज लॉजिक, ठीक है, एंड दिस इज आंसर, ओके। ऑन दिस यू विल हैव मार्क्स, दिस यू विल राइट इन वर्किंग नोट्स, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट मॉड्यूल आई विल टीच अबाउट रिजर्व्स। थैंक यू।